Very good morning, students of class 10th. Here I am Poonam Prasad again with the sub-subject geography and the chapter manufacturing industries with the topic contribution of manufacturing industry in terms of national economy and also about the location of industry, what are the factors behind the location of factories and some important terms like special economic zones and urban economies. Fine students, बहुत छोटा टॉपिक हम लोग आज ले रहे हैं, but let's we talk on the previous one. Student, in our earlier class, you can say in the term of economics, we have already gone through with the secondary activities. It also considered as the manufacturing industry as an example in the secondary activities. Fine children. So in our yesterday class, we came across with the definition of manufacturing industries along with the importance. We have the important topic today, and the topic is contribution of the industries in Indian economy. Students, in our chapter number 2, we have already learned the historical context or historical perspectives about the different sectors that were your primary, secondary and tertiary. उनके कंट्रीब्यूशन, उनके शेयर को हमने जीडीपी में पढ़ा था. ठीक है बेटा, चूँकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सो लेट्स वी हैव अ टॉक ऑन द contribution of manufacturing industry in terms of Indian economy. Children, as we have already gone through with that, in the present scenario of the development, industrialization in India, it shows you can say the fastest, one of the fastest economy of the world. According to 2019, it means 2019 scenario of economy, India stood 5th as in rank in terms of the fastest growth in the economy. So the development rate is quite important here, and development rate is with the help of growth in the manufacturing industry. Students, manufacturing industry is a very important role played in the growth of the economy of a country, which comprises of the two sectors, that is the share of the two sectors, specifically the public as well as the private sectors. It means that if we are talking about the SAIL, that is Steel Authority of India Limited, which is a public organization, and if we are talking about the TISCO, that is Tata Iron Steel Corporation, these two companies are, one is private, another one is public, another one is private. So their contribution for Indian economy is quite positive. Fine. This industry not only contribute in terms of the development, it also improving the infrastructure, like you can say, as I have going to tell you about the special economic zones. So it contributes in improving the basic facilities required for establishment of your industries. बेटा पिछले 20 सालों से अगर हम देखें, 20 से 30 सालों में अगर हम देखें, आफ्टर 1950s ऑनवर्ड्स अगर हम बात करते हैं, तो हमारा जो जीडीपी था वो स्टैग्नेंट था एट 17%. वेरिएशन ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्लास चैप्टर नंबर 2 में भी बताया था ऑफ योर इकोनॉमिक्स कि किस तरीके से जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था कि 1950-51 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड पुट मोर एंड मोर फोकस्ड ऑन द प्राइमरी सेक्टर टू रेज. उसी तरीके से जो जीडीपी था वो एक स्टैग्नेंट लेवल पे था, बट ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन and the coming up of multinational companies, or you can say the liberal policies
undertaken by the government of India in terms of taxes, removal of the tax barriers or the removal of the trade barriers, you can say, and the minimization of the taxes. These all policies leads to the growth of GDP in terms of manufacturing industry in terms of 17% to 31% according to the 2016 to 2017. It's a quite you can say positive growth from this side of this secondary activity. Fine students, लेकिन अभी भी भारत जो हमारे कॉन्टिनेंट है, एशियन कॉन्टिनेंट है, उसके कई देशों से स्पेसिफिकली ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के जो कंट्रीज़ हैं उनसे काफ़ी पिछड़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ यू कैन से फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन इकोनॉमी. बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं भारत के, जिसमें से सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ. फाइन बेटा. Manufacturing industries, it also helps in growth of, as I have already told you, it helps in the growth of प्राइमरी स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर को बूस्ट अप करता है, और दूसरी तरफ वो टर्शरी सेक्टर को भी इम्प्रूव करता है, लाइक जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन टर्म्स ऑफ टर्शरी सेक्टर्स, लाइक जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, roads, making of roads, then the constructions, then the professionals, or you can say the IT professionals. इसमें यानी कि सेकेंडरी सेक्टर खुद अपने आप को इम्प्रूव तो कर ही रहा है, बट उसके साथ साथ जो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, प्राइमरी एज वेल एज टर्शियरी सेक्टर्स है, वो भी उसके साथ उसकी ग्रोथ है. इज़ दैट क्लियर? बट अभी का जो सिनेरियो, उसमें जीडीपी जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम द साइड ऑफ द टर्शियरी, then comes to your secondary, and the least one is your primary sector. Government has to put focus on these issues, क्योंकि भारत का अगर इकोनॉमी स्ट्रक्चर या इकोनॉमी सिनेरियो देखें तो हम ये मान सकते हैं कि भारत का इकोनॉमिक सिनेरियो डिपेंड करता है प्राइमरी सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा, अब काफ़ी हद तक, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिस पे हम लोगों ने एग्रीकल्चर में भी इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की है. तो बहरहाल बेटा, आप लोगों को जो इसमें पढ़ना है दैट इज़ अबाउट द कंट्रीब्यूशन. तो 17% से ये इसकी ग्रोथ है 31% की, बट अकॉर्डिंग टू 2016-17 सिनेरियो इसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ इन टर्म्स ऑफ लोकेशंस. स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ एज एन एंटरप्रेन्योर, you can say entrepreneur is a business, as the startup of your, if you want to start any sort of business, what sorts of the factors you are going to have in your mind while establishing the you can say establishing your industries in any place. Fine. उसके लिए कौन कौन से factors हैं? बेसिकली बेटा जो फैक्टर्स हैं वो है आपके जोग्राफिकल एंड नॉन जोग्राफिकल, राइट? इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द जोग्राफिकल इज रिलेटेड विद द रॉ मटेरियल, बिकॉज द रॉ मटेरियल इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट हियर. देन जिसे हम लोग कच्चा माल कहते हैं, क्योंकि अगर कच्चा माल नहीं होगा तो वी कैन नॉट थिंक अबाउट द what type of substance we have to go through. तो ये सब हमें पहले अपने दिमाग में रखना चाहिए. रॉ मटेरियल शुड बी नीडेड. अगर हम एक शुगर मिल खोलने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, शुगर की. हम कौन से जगह से ज़्यादा हमें शुगर केन की सप्लाई हो सकती है. पावर एंड वाटर सप्लाई इज़ क्वाइट नीडेड हेयर चिल्ड्रन, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए हमें रेगुलर इंटरवल पे हमें, या हम कह सकते हैं 24/7 की पावर सप्लाई और वाटर सप्लाई इज़ नीडेड. गुड ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज योर कम्युनिकेशन system or the facilities provided. Then very important one is your labor. The labor should be abundant in terms of your it should जैसे हमें cheap labor और skilled लेबर्स की ज़रूरत है. अगर अनस्किल्ड भी है तो
बाय प्रोवाइडिंग देम द ट्रेनिंग्स वी कैन, क्योंकि हमें बेटा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए वी हैव टू गो थ्रू विद more and more workforce. Fine. So the labors are required, but उसमें भी हमें ये चेक आउट करना पड़ेगा कि वो लेबर्स स्किलफुल हैं या नहीं है, एंड ये अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशंस इट डिपेंड्स. देन हमने सामान, जब कोई भी हमें मटेरियल या कोई भी हमें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके बारे में आपको लेटर ऑन बताऊंगी अबाउट द मार्केट एंड द डिमांड साइड, विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट बेटा. जैसे कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री ए, वो एक साबुन है, दैट इज़ योर वॉशिंग पाउडर, उनको दे हैव टू मैन्युफैक्चर. ठीक है, उन्होंने जो डिमांड और सप्लाई की बात की वो कहाँ पे थी? गांव में, रूरल एरियाज़ में. ठीक है ना, वहाँ पे जाके अगर वो हाई क्वालिटी ऑफ, क्योंकि अगर हमें हाई क्वालिटी ऑफ सोप या डिटर्जेंट पाउडर बनाना है तो उसके लिए लागत भी, यानी इनपुट भी हाई होगा और आउटपुट मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो परचेजिंग पावर पैरिटी होगी उस एरिया की, वो उस साबुन को नहीं खरीद सकता या वॉशिंग पाउडर को नहीं खरीद सकता है ना. लेकिन अगर वहीं पे क्वालिटी को से कॉम्प्रोमाइज़ ना करके बट हम उस स्टैंडर्डाइज्ड में ले, जिसमें कि हमें कम लागत में हम अच्छा सामान दे सकें, अच्छा वॉशिंग पाउडर दे सकें जो कपड़े तो धोता ही है साथ ही साथ, लेकिन उसकी जो कॉस्ट कटिंग है अगर वो अफोर्डेबल है फॉर दैट एरिया, तो ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं वहाँ पे डिमांड और सप्लाई बहुत पॉजिटिव रहेगा. जैसे कि अगर एक रिन है, रिन फैक्ट्री अगर जाकर गांव देहात में अपना सर्फ एक्सेल या रिन है वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो शायद लोग ख़रीदने में हेजिटेट करेंगे. लेकिन वहीं पे अगर जैसे कई ऐसे साबुन आए थे, जैसे 555 है ना बेटा, या कई ऐसे लोकल मेड जो साबुन हैं वो बनाए जाते हैं, द यू कैन से वॉशिंग बार, तो वहाँ पे उसकी डिमांड ज़्यादा होगी. ठीक है ना बेटा, तो डिमांड इन सप्लाई इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द परचेजिंग पावर ऑफ दैट एरिया. तो ये चीज़ एज एन एंटरप्रेन्योर हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट इशू जो है दैट इज़ योर नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स. स्टूडेंट्स, नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है, अच्छा आपके जोग्राफिकल फैक्टर्स में क्लाइमेट इज़ ऑल्सो नीडेड. वहाँ पे ठंडक है या गर्म है या शुष्क है, किस तरीके का है, हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को ओपन करें, क्या क्लाइमेट का असर उसके ऊपर पड़ेगा या नहीं. जैसे कि अगर हम ये बात कहें कि नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. उसका सबसे बड़ा जो बेसिक जो उसमें हम कह सकते हैं जो रीज़न है दैट इज़ योर क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट एरिया. ठीक है बेटा, इसमें लैंड फॉर्म्स भी आ जाएंगे, उसमें आपका टेम्परेचर है, आपका रेनफॉल है, ये सब एक क्लाइमेटिक कंडीशन, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज. फाइनल स्टूडेंट्स, देन जो नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स की अगर हम बात कर रहे थे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स, राइट. मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट्स आर नीडेड, दैट शुड बी नोन टू अस कि कौन से हमें फैक्ट्री को ओपन करना है, स्मॉल स्केल फैक्ट्री, लार्ज स्केल फैक्ट्री या मीडियम स्केल फैक्ट्रीज. फाइन. क्या हमें कॉटेज इंडस्ट्री तो नहीं, यानी कुटीर उद्योग तो नहीं, क्या वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ या इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है उस एरिया में. और सबसे बड़ी बात चिल्ड्रन, दैट इज़ द पॉजिटिव पॉलिसीज़ फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट. स्टूडेंट, मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताती हूँ कि जो टाटा मोटर्स, जब उन्होंने टाटा जो कंपनी, उन्होंने नैनो, यू हैव हर्ड अबाउट द कार नैनो, उसके लिए दे अप्रोच्ड टू द CM of Bengal, West Bengal, for opening up their plant. But unfortunately it won't work out, वो वर्कआउट नहीं हो पाया और किसी कारण से टाटा को अपना प्लांट जो शिफ्ट
था, हालांकि उन्होंने बात ही की थी, उनको उन्होंने चेंज किया टुवर्ड्स द सनंद, दैट इज़ यू कैन से इन गुजरात, ठीक है। और वहाँ गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने एट दैट टाइम उन्होंने बहुत पॉजिटिवली नैनो ओनर्स को अपनी जगह, अपने गुजरात में एरिया उनको प्रोवाइड किया और उनको प्लांट लगाने की इजाज़त दी। तो अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, उसका सीधा असर पड़ेगा आपके इंडस्ट्रियल लोकेशन पे, है ना। ये बहुत सारे पॉलिसीज़ में आते हैं, जैसे इंडस्ट्री शुड नॉट बी ओपन इन रेजिडेंशियल एरियाज़, दैट शुड बी यू कैन से आउटर स्कर्ट्स में होना चाहिए, एक्सटीरियर्स टू योर एरियाज़, ठीक है। बहुत सारी पॉलिसीज़ को इंडस्ट्रीज़ एक्सेप्ट करती है, इंडस्ट्री ओनर्स एक्सेप्ट करते हैं, तो इन फैक्टर्स को हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। नेक्स्ट जो मैं आपको टॉपिक लूँगी बेटा, दैट इज़ अबाउट द अर्बन इकोनॉमीज़ एंड अबाउट द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। चिल्ड्रन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो जोन्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल फ्रेंडली जोन्स टू अट्रैक्ट द फॉरेन एज वेल एज द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, है ना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़, पॉजिटिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी, जिसके वजह से टाटा मोटर्स को नैनो प्लांट लगाने के परमिशन दिया गया, ठीक है बेटा। तो ये उसके लिए बहुत हद तक प्रोवाइड है, जैसे कि गुजरात में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ अगर सेटअप होती हैं तो पीछे का रीज़न क्या है, गुजरात रीजन्स आर कंसिडर्ड एज द इंडस्ट्रियल फ्रेंडली जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। फाइन स्टूडेंट्स, तो they provide the infrastructure, the basic infrastructure, for example the roads, banking, insurance, power supplies, water supplies, labors and all given to the you can say to the industries। तो ये पॉलिसीज़ पॉजिटिव पॉलिसीज़ है, या ये जो जोन्स बनाए जाते हैं जस्ट टू अट्रैक्ट द फॉरेन एज वेल एज द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स to set up more and more industries in that area। Students, कई बार ऐसा होता है कि एक इंडस्ट्री सेटअप हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेस, ठीक है, और वो हाँ, हमारे देश में सम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं बेटा, जैसे दिल्ली एनसीआर इज़ देयर, नेशनल कैपिटल रीजन्स में आपका आपके कानपुर रीजन्स हैं, ठीक है, ये आपके कहलाते हैं, दैट इज़ योर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। फाइन। इसके अलावा आपका एक वर्ड आता है दैट इज़ कॉल्ड एज अर्बन इकोनॉमीज़। समटाइम्स जब हम लोग सेटअप करते हैं इंडस्ट्रीज़, तो वो इंडस्ट्रीज़ उस एरिया को बना देता है एज अ हब ऑफ न्यूमरस डेवलपमेंट फैसिलिटीज़, राइट। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या एक इंडस्ट्री अर्बनाइजेशन को इनिशिएट कर सकता है? बिल्कुल। इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो enhances the employment as well as the eradication of the poverty over the area, जिसकी वजह से जो वो एरिया है उसमें इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस से वो रिड्यूस होगा, है ना। और जो बैकवर्ड रीजन है इट कन्वर्टेड इनटू इकोनॉमिकली फॉरवर्ड रीजन। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूव करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये आपको बैंकिंग यानी टर्शरी सेक्टर्स क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स विद द कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो अट्रैक्ट्स द लेबर फोर्सेस। तो ये इम्पॉर्टेंट है फॉर द you can say for the establishment of any sort of industries
तो समटाइम्स वो एरिया प्रोवाइड रेडी मार्केट टू द अदर इंडस्ट्रीज। जैसे कि अगर आपके बाटा कंपनी को स्टैब्लिश करना है इन एन रीजन, राइट बेटा, मैं आपको मैं दूसरा एग्जांपल क्यों ना दूँ, ये एग्जांपल आपके रीजन से ही है, दैट इज़ झलवा। अर्लियर झलवा was not considered as a well developed region of this area। उसको बनाने के लिए NCR तो था ही था, साथ में शंभुनाथ इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये एरिया एजुकेशनल हब भी कहलाता है। शंभुनाथ इंस्टीट्यूशनल के बाद आपका जैसे केंद्र विद्यालय हमारा दैट इज़ NCR तो है ही है ना, रेलवे नॉर्दर्न सेंट्रल जोन्स है ना, रीजन्स है ही है, नॉर्दर्न सेंट्रल जोन कहलाता है बेटा इसको। तो उसका सेटअप हुआ। ऑन द अदर हैंड शंभुनाथ इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ। तो जहाँ पे लोग नहीं इस्टेब्लिश हो रहे थे, अर्बनाइजेशन शून्य था, वहाँ पे धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बढ़ा। और आज आप खुद देख रहे हैं कि झलवा is going to be well developed regions of the Allahabad, है ना, of the Prayagraj you can say। तो यहाँ पे you can find out residential areas भी हैं, hospitals भी हैं, schools भी हैं, colleges भी हैं। Then the big hospitals like Medicity is also there, केंद्र विद्यालय, खेलगांव पब्लिक स्कूल, इट मीन्स ये मैंने पहले ही कहा these are considered as a hub over there, है ना। तो एजुकेशनल हब तो है ही है। आपका मार्केट प्रोवाइडेड ओवर हेयर। अर्बन जो एक रूरल इकोनॉमी था, जो एक बैकवर्ड इकोनॉमी था इस रीजन का, वो अल्टीमेटली इन इंस्टीट्यूशंस के वजह से वो टर्न अप हो गया इनटू द इकोनॉमिकली फॉरवर्ड रीजन्स, है ना बेटा। प्रॉपर रोड्स कंस्ट्रक्शंस होने लगी, मार्केट्स ओपन अप होने लगे, और धीरे धीरे लोगों का जो शिफ्टिंग था फ्रॉम अदर रीजन्स टू झलवा वो फ्रीक्वेंट होने लगा। इस तरीके से हम इसे कहते हैं अर्बन इकोनॉमीज़। यानी किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन या किस तरीके से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, मैंने ये जो एग्जांपल दिया है बेटा, वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को मद्देनज़र रखते हुए उसको आपके सामने प्रेजेंट किया है। इज दैट क्लियर? एज एन एग्जांपल, फाइन। उसी तरीके से कई ऐसे, जैसे नैनी है, ये इंडस्ट्रियल हब है एडजेसेंट टू योर प्रयागराज। तो पहले नैनी जहाँ स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इट कन्वर्टेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन इकोनॉमीज। इज दैट क्लियर? और वो बैकवर्ड, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड था, इट टर्न्ड अप इनटू द इकोनॉमिकली फॉरवर्ड रीजन्स। Fine students, in tomorrow class I would like to take the important section, and that is the classification, which is quite very important with the examples, definitions and the example. Till then students, goodbye.